ٹھیک نہیں ہے. ان دونوں باتوں کا آپ جواب دے دیجیے گا. میں اس میں تھوڑی سی بات میں وضاحت کر دوں کہ ڈرون حملے بعد میں شروع ہوئے ہیں، سیوسائیڈل اٹیکس پہلے سے تو ہو رہے ہیں. یہ آپ نے بات کر لی نا حبیب عرفانی صاحب، میں جنرل صاحب سے اس کا جواب لے لوں. جی جنرل صاحب. جی جنرل صاحب آپ کی آڈیو میں کچھ پرابلم آ رہا ہے، میں دوبارہ آپ کو لیتا ہوں. اور یہ سب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کی پریزنس کے بغیر ٹھیک نہیں ہو، کہ جب تک امریکہ کی پریزنس ہے کچھ نہیں ہو سکتا، حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. لیکن مجھے یہ جواب دیجیے گا کہ کیا آن گراؤنڈ سچویشن ایسی ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بالکل قطع تعلقی کر لے اور الگ ہو کے بیٹھ جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایگزیکٹلی ممکن ہے. یہ سوال چلی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی اکانومی کس قسم کی ہے، آپ چل سکتے ہیں کہ نہیں. یہ سوال ہونڈراس میں لوگوں نے کیا تھا اور اسی طرح کرتے تھے. انٹیلیجنس کیا کھڑے ہو کے کرتا تھا، اسی طرح پولیٹیشنز کہتے تھے. یہ سوال برازیل میں پوچھا گیا تھا، یہ سوال نکراگوا میں پوچھا گیا تھا، یہ سوال ہونڈراس میں پوچھا گیا تھا. سارے کہتے تھے امریکہ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. آج سے 4 مہینے پہلے اکانومسٹ کی رپورٹ ہے 37 صفحے کی، انہوں نے کہا ہے کہ 2025 میں برازیل کی اکانومی نو منتھ بیک یارڈ ہے کہ اب یہ کسی کا پچھلا دروازہ نہیں رہ گئے. اب یہ اتنی بڑی اکانومی بن گئے ہیں کہ امریکہ کو اپنے ڈالر کی قیمت نیچے کرنی پڑی ہے تاکہ اس کی اکانومی کا مقابلہ کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اور یہ سب کیا کوئی اور فیکٹر بھی ہے یا امریکہ از دی اونلی فیکٹر آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ انڈیا کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کی ایجنسیز ہیں، مساعد کا نام بھی لیا جاتا ہے. میری بات سنیں. آپ نے جس وقت یہاں پر آپ کیسے شروع ہوا، آپ 80s میں چلے جائیں. 86 میں جس وقت ایرانین ریولوشن آیا ہے اس وقت یہاں پر ایک تھوڑا سا بلٹ اپ ہوا تھا. آپ کو پتا چلا کہ شیعہ سنی فساد شروع ہوا اور ایرانیوں نے اپنے آپ کو کنٹین کر لیا کہ نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے، میں ایران میں رہا ہوں. اور اس کے بعد تھوڑا سا معاملہ ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب امریکن اس کے اندر آئے تو انہوں نے سارے معاملے کو اٹھایا. خصوصاً آپ کو پتا ہے کہ آج سے تقریباً 3-4 سال سے پہلے برائن ڈی ہنٹ جب جہاں پر ہوتا تھا، میں یہاں پر موجود ہوں جہانگیر کے مقبرے میں. تمام مزاروں کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کو ایسا کریں کہ ایک بریلوی مکتب فکر کے جو لوگ ہیں ان کو ان کے مقابلے میں اٹھائیں تاکہ ان کے مسائل بنے. باقاعدہ پالیسی سٹیٹمنٹس بنی اور اس کے اوپر باقاعدہ جہانگیر کے مقبرے میں تمام شیوخ کو اکٹھا کر کے اس کے بعد سائن کیا گیا. اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہاں آتے وہ قادری پیدا ہو گیا سلمان تاثیر کو مارنے کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ صاحب 1 منٹ میں مجھے دیجیے گا، میں ذرا جنرل صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. جنرل صاحب یہ بتا دیجیے گا کیا امریکہ ہی ایک فیکٹر ہے کہ جو یہ سارا کرا رہا ہے جس طرح سوریا صاحب کہہ رہے ہیں، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، یہ جو سوریا صاحب کہہ رہے ہیں وہ شیرل برنارڈ کا ایک پورا مقالہ اور پورا پیپر لکھا گیا رینڈ کارپوریشن کے لیے وہ ایئر 2000 کے اندر 9/11 سے بہت پہلے. اور شیرل برنارڈ کون ہے؟ وہ زلمے خلیل راد جو کہ ہیں تو افغان لیکن امریکی افغان ہیں، بہت مشہور نام ہے، ان کی بیوی ہیں. تو یہ ایک باقاعدہ انہوں نے یہ پلان بنائی کہ 4 حصوں میں تقسیم کر کے اور ان کو کہا کہ آپ جو بریلوی مقاصد کے یہ عقیدے کے لوگ ہیں ان کو جیسے یہ فرما رہے تھے بالکل درست ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کل کے ہی نیو یارک ٹائم کی رپورٹ آئی ہے کہ ڈیوڈ پیٹریس جو ہے وہ اپنی تیسری جنگ پاکستان کے اندر لڑے. جی بالکل. اب اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ پہلے نہیں جنگ لڑ رہے؟ جب انہوں نے ایف پاک بیٹل فیلڈ کہا تھا تو اس وقت ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ 9/11 بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. چنانچہ پاکستان کو انہوں نے پہلے دن سے نشانہ بنا رکھا ہے. تو اب اس کے اندر آپ کے پاس طریقہ کار کیا ہے؟ پاکستان نیوکلیئر ہے، اعلیٰ درجے کی فوج ہے، خود کفیل ہے خوراک میں اللہ کی فضل و کرم سے. تو بہت سے عوامل پیچھے ہماری پشت پہ چین بھی ہے جو ہمارا بہت دوست ہے. تو پاکستان کو کیسے ادھیڑیں گے؟ انہوں نے ادھیڑنے کے لیے اندرونی طور پہ ایک نقشہ بنایا ہوا ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور پھر اس کے لیے وہ اکساتے ہیں. ابھی ڈرون حملوں کا آپ ذکر کرتے ہیں عرفانی صاحب، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا، میں جسٹیفیکیشن کہاں ان کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ڈرون حملوں کا افغانستان کی جنگ پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی ان کو فائدہ نہیں ہوا، لیکن نقصان سارا پاکستان کو ہو رہا ہے. 2500 بندے مارے گئے. اب وہاں سے انہی کے لوگ آتے ہوں گے اور ان کو یقیناً وہ دلیل پیش کرتے ہوں گے کہ بھائی تم یہ کرو، ایسے کرو، اکساؤ. ان کے لیے بھی اسلامی دلیلیں دی جاتی ہوں گی کیونکہ یہ موساد کا بڑا مروجہ طریقہ ہے، بڑا معروف طریقہ ہے کہ فرنٹ پہ کسی اور کو رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کاروائی کرواتے ہیں. تو یہ ایک ہماری جو سرات کر گیا ہماری رگ و پے میں، ہمارے سسٹمز میں امریکہ، اور پرویز مشرف نے بڑا ہی ظلم کیا ہمارے ساتھ.
जो कौम को रोशन ख्यालों और तारीख ख्यालों के दरमियान तकसीम किया और फिर उसके बाद अमेरिका के कहने के ऊपर उसने हर एक चीज की फरोख्त कर दिया कौम को, एक खून की ऐसी लकीर छोड़ के गया, जामिया हफ्जा के ऊपर हमला करवा दिया, अभी उसको जस्टिफाई करवा को बिल्कुल तकसीम कर दिया। ठीक है, अच्छा जहाँ साहब मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा। इरफानी साहब, अब आप हुकूमत से जो मुतालबा करते हैं, क्या यही मुतालबा है सिर्फ के मज़ारात को सिक्योरिटी दी जाए, या आप समझते हैं कि जिसके पीछे जो पूरी हिकमत अमली है वो हुकूमत को बनानी चाहिए और आपका मुतालबा इस तरह का है कि अमरीका की को यहाँ से एलिमिनेट करना, उसको उनके अड्डे खत्म करना और कुछ ऐसा एजुकेट किया जाए लोगों को जो हमले करते हैं या वो बच्चे जो ब्रेन वॉश जिनका किया जाता है वो इस्तेमाल होते हैं, उनको तालीम दी जाए? आपका एजेंडा क्या इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव है या सिर्फ आप सिक्योरिटी मांगते हैं? नहीं, देखिए, सिक्योरिटी, कितने लोगों को सिक्योरिटी? अब ये पिछले दिनों एक खबर आई थी कि हमारे पुलिस के कुछ 64-65% लोग जो हैं वो VIPs की सिक्योरिटी पर हैं। और क्या हर आदमी के साथ एक सिक्योरिटी लगाई जाएगी? ठीक है ना, आपका मुतालबा फिर क्या है? ये तो इस बात का हल नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान को इसकी सॉवरेनिटी को कायम किया जाए, इसकी सॉवरेनिटी को अवलियत दी जाए, ना कि पैसों के बदले। अब एक और या मकबूल साहब ने बात की है मुआशियात के हवाले से, मैं उनकी बात की मुकम्मल तायीद करूंगा कि हमारे यहाँ 28 अरब डॉलर अब तक वार ऑन टेरर पर खर्च हो चुके हैं और मिला हमें 4 से 5 अरब डॉलर है, और उसका भी इतना वाविला है कि ये ना मिले तो हम मर जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। जो हम इतना खर्च कर चुके हैं तो क्या हमारे पास मजीद वाज़ेह हो गई। मेरा आपसे सवाल यह है जो मैंने पहले भी किया था, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मज़ारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाने के लिए उन लोगों को साथ में लाएं जो सियासत में भी हैं, जो पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं और जिनके पास गद्दी नशीनियां भी हैं? मैंने कुछ नाम भी लिए आपके सामने के फैसल सालेह हयात साहब हो सकते हैं, मखदूम अमीन फ़हीम है, खुद कुरैशी साहब हैं, गिलानी साहब हैं, इन लोगों को साथ क्यों नहीं मिलाते आप अपने फोरम्स पे? देखिए, वो बात, ये यकीनन मामला चल रहे हैं, जिस तरह कुरैशी साहब ने आपसे फरमाया था कि उनके यहाँ जब हज़रत शाह रुकन आलम का उर्स था, वहाँ मीटिंग हुई, बहुत से मशाइख वहाँ इकट्ठे हुए, उसमें बातें हुई, अब एक ग्रुप बना, उसके बाद अब यह है कि ये मई में जिस तरह से उन्होंने फरमाया है मीटिंग होगी, उसमें इकट्ठे होंगे। लेकिन पाकिस्तान में अमन व अमान का क़याम ना ये सिर्फ किसी एक मसलक का या एक सेक्ट का मसला है, ये पूरी कौम का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है और ये पाकिस्तानियों का मसला है। इसमें सिर्फ मज़ारात ही निशाना नहीं बन रहे, इसमें बसें भी निशाना बन रही हैं, इसमें मार्केटें भी निशाना बन रही हैं, इसमें सड़क पर चलते लोग भी निशाना बन रहे हैं, पुलिस भी निशाना बन रही है, फौज भी निशाना बन रही है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी निशाना बन रही हैं। तो ये एक सिर्फ मज़ारात का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान की। हबीब इरफानी साहब, एक ब्रेक मुझे लेने दें, यहाँ पर एक ब्रेक हम लेंगे और मैं एक सवाल उठाऊंगा और ये मकबूल जान साहब से भी और जनरल साहब से पूछूंगा कि इस वक्त हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लगता नहीं है कि अमेरिका के साथ उसको अल्लाह हाफिज करने वाली हैं और उसके साथ कता ताल्लुकी करके और उनको यहां से भेजने के लिए इस्तदा करने वाले हैं कि जी आप हमारा पीछा छोड़ दें। ऐसा लगता तो नहीं होने। क्या फिर हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन भी है? क्या कोई और तरीका भी है? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और ये मकबूल साहब, आपने जो गुफ्तगू की है अभी ब्रेक पर जाने से पहले, आपने कहा कि अमेरिका एक वाहिद प्रॉब्लम है और अगर अमेरिका को हम यहां से निकाल दें और उसकी मुदाखलत को खत्म कर दें तो मामला ठीक हो जाएंगे। अब जो इस वक्त ग्राउंड पर सिचुएशन है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जो अपोजिशन में बैठी है या जो हुकूमत में बैठी है या इत्तेहादी है, कोई भी शायद ऐसा स्टेप नहीं उठाने वाली है या उसमें दम नहीं है, तो क्या हमारे पास कोई सेकेंड ऑप्शन भी है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का नाम ना लें, आपकी जो पूरी इलीट क्लास है, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा मालदार क्लास है, उसमें दम क्यों नहीं है? इसका और कभी किया आपने? उसकी वजह यह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हों, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारे जर्नैल हों, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उन सबके बच्चे बाहर जाके मुलाजमतें कर रहे हैं, उन सबकी जायदादें बाहर हैं, उन सबके कारोबार बाहर हैं। मसला सारा यह है कि वो समझते ये है कि अगर हमने अमेरिका को आंखें दिखाई तो सबसे पहले तो हमारे बच्चे जो हैं वहां से वापस आ जाएंगे और वो यहाँ ऐसे आम आदमियों की तरह नौकरियां ढूंढते फिरेंगे और आम आदमियों के साथ मिलकर नौकरियां करेंगे। हमारे बच्चे जो हैं वो वहां से उठेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में या पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा हमारे साथ। हमारे बच्चे जहाँ ईटन में और ऑक्सफोर्ड में वहां नहीं पढ़ सकेंगे। फिर तीसरा खौफ उनको यह है कि हमारी जायदादें वहां हैं, वो हमारी जायदादें जो हमने हराम से जहां से बेईमानी करके कमाई हुई है, आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान दो मुल्क कहते हैं, एक अबू धाबी और एक यूके, जहां की रिमिटेंसेस जो हैं वो 3 गुना बढ़ गई हैं गुज़श्ता
1 साल के अंदर। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि यहाँ से करप्शन का पैसा वहां जाता है और वहां जाके रिमिटेंसेस की सूरत में आ जाता है। वहां को हमारे मजदूर बढ़ गए हैं ज्यादा, वहां उनकी तनख्वाहें कुछ 4-5 गुना ज्यादा हो गई है। कुछ नहीं हुआ, ये पैसा मेरे मुल्क का लूटा हुआ पैसा है जो यहाँ वहां जमा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। मतलब ये है कि वो पाकिस्तान से नहीं डरते, यहाँ के अवाम से नहीं डरते, वो डरते हैं अमेरिका से, क्योंकि उनका इंटरेस्ट वही है, उनका पैसा वही है, उनकी दौलत वही है, उनका कारोबार वही है, इसलिए वो स्टेप में ले सकते हैं ये स्टेप। ठीक है, अच्छा जनरल साहब मैं और ये सब जनरल साहब की तरफ जाऊंगा। जनरल साहब, अब गुफ्तगू को जब यहाँ पे अब जब हम खत्म कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। क्या ख्याल है आपका कि वाकई कुछ नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो सोल्यूशन हैं ये तो बड़े आइडियल से लगते हैं मौजूदा हालात में। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं कभी भी अल्लाह ताला ने पैदा की जिसका कोई हल ना हो। हल है, लेकिन उसके लिए गैरत मिल्ली को बेदार करना होगा। लेकिन यहाँ लोग चुप साधे हुए हैं और जो बोलता है गैरत की बात करता है, अपने हाकमियत आला की बात करता है, और हकीकत में हमारी हाकमियत आला तो हमारी नहीं है। हमने आईनी तौर पे करारदाद मकासद में कबूल कर रखा है कि अल्लाह ताला की हाकमियत आला है पाकिस्तान में, और उसको अमेरिका चैलेंज कर रहा है और उस चैलेंज को हमें रोकना है। अभी ये नहीं कहते हम कि बिल्कुल अमेरिका के साथ हालत जंग में हम आ जाएं, खुली जंग में। अगरचे वो खुफिया जंग तो लड़ रहे हैं हमारे साथ, लेकिन खुली जंग मेरा ख्याल है कि वो कोई हल नहीं है। ठीक है, इसलिए अभी अमेरिका ने तो रुखसत होना है यहाँ से। ठीक। अलबत्ता अब दानिश का तकाजा ये है, जैसे रूस जा रहा था अफगानिस्तान से, और मैं ऐनी शाहिद हूँ उसका, कि उस वक्त भी सूरत हाल उन्होंने ऐसी कर दी थी कि बम धमाके करवाते थे बेतहाशा। ये KGB और खार्ड जो अफगान इंटेलिजेंस थी और उसके साथ रॉ इंडियन। और यानी जनरल साहब, आपको लग रहा है कि उन्हीं चीजों को हम देखें तो आपको लग रहा है कि जल्दी अमेरिका शायद जाने वाला है? यह बात आपने की। हबीब और इरफान साहब, मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा एजेंडा क्या है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल एजेंडा बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं। देखिए, मैं जनरल साहब की भी और औरिया मकबूल जान साहब की बात से भी मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। इकबाल का एक शेर है तकदीर का फतवा ये अज़ल है, तकदीर के काजी का फतवा ये अज़ल से, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा है मर्ग मफाजात। जब तक हम एक बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी इकट्ठे नहीं होंगे, जिस तरह से जनरल साहब ने और या मकबूल साहब ने फरमाया कि हमारे इलीट क्लास और ख़ास तौर पर हमारी हुक्मरान क्लास, उनके मफादात मुल्क से बाहर हैं। जब तक यहाँ मफादात सबके नहीं होंगे, यहाँ के लिए सारे लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, इस मुल्क की इज्जत के लिए, इस मुल्क की आबरू के लिए, इस मुल्क में रहने वालों के लिए, इस मुल्क में बसने वालों के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनकी आबरू के लिए काम नहीं होगा, तो यकीनन ये तो फिर जुर्म। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा इरफानी साहब के तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। इसी पैगाम पर हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं कि अपनी कमजोरी को खत्म करना होगा अगर तरक्की करनी है और अगर अपने आप को महफूज बनाना है। मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा।